Hi student, my name is Jatin Chavan and we are starting with subject film communication. Okay, so student we are starting with topic Indian diaspora and Bollywood. So first of all, we should know the meaning of what is diaspora. Bollywood has globally successful phenomena can be attributed to the alignment of the film industry toward the Indian diaspora, a wider audience outside India. So, what is diaspora? Diaspora, a who is by birth, who is an Indian, okay, but residing outside India, okay, जो जन्म से भारतीय है बट वो रहते हैं भारत के बाहर, उनको कहा जाता है इंडियन डायस्पोरा. ओके, तो बॉलीवुड का या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्या क्या इम्पैक्ट होता है उन पे, हमारी जो बॉलीवुड के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में देख के. ओके, सो इन जनवरी 2015 द इंडियन गवर्नमेंट काउंटेड 1 million people has non residing Indian. ओके, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया का है बट वो इंडिया में नहीं रह रहे. ओके, NRI आर पीपल विद एन इंडियन नेशनलिटी लिविंग अब्रॉड फॉर मोर देन 180 डेज पर ईयर. अगर 180 दिन से ज़्यादा आप इंडिया के बाहर रहते हो तो आप भी NRI हो जाते हो. ओके, सो PIO आर पीपल ऑफ इंडिया descended up to the fourth generation living outside of India. Okay, the term Indian diaspora should be seen as a social construct with trees to summarize group of Indian descent that differentiate concerning class, race, ethnic, religions on origin, length and choice of residence and time of migration. Religion among the diaspora include Hindu, Muslim, Sikh, Jain, Buddhist, Parsi etc. तो ये इंडियन डायस्पोरा के ये जो रिलीजन है. ओके, वाइल द डिफरेंट एथनिक इंक्लूड गुजराती, बंगाली, पंजाबी, नागा, ये डिफरेंट एथनिक सिटीज़ के लोग हैं जो आउटसाइड इंडिया रिसाइड करते हैं. जैसे USA है, कनाडा है, UK है, सबसे ज़्यादा USA में इंडियन लोग हैं. ओके, are among the main reason of distinction for permanent migration. The USA, the economic background varies extremely with the around 250 million people located in middle class and 300 million people has been classified as poor. This is due to the different migration pattern in the 60s and 70s. Indian migrants were mainly professional and graduate students, while many migrants who arrived in the USA in 1980 and 1990 tend to less well off and educated. Has self designation, particularly among young Indian American or British Indian, in the term Desi. Hindi movie from Mumbai, widely known as Bollywood, played a crucial role for this community in their diaspora lives. To get an idea about the industry, Bollywood movie are watched around 3.2 बिलियन पीपल आर वर्ल्ड वाइड. मतलब वर्ल्ड वाइड में 3.2 बिलियन पीपल के द्वारा देखा जाता है बॉलीवुड, मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा. ओके, सो अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ हॉलीवुड, बॉलीवुड हैज़ ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मीडिया हैज़ द potential to enable the construction of idea across generation of the Indian diaspora. This way recognizing by the Bollywood film industry as well as Indian government. In 2003, the Indian government created an annual festival प्रवासी भारतीय दिवस. देखो, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस, इंडियन नॉन रिसाइडिंग इंडियन डे, ओके, फॉर NRI and PO to mark the contribution of the overseas Indian community of the development of India. It is celebrated on January 9th and commemorate the return of Gandhi to India. देखो, अब प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है, ये बहुत ही ज़रूरी है. जब गांधी जी इंडिया में रिटर्न आए थे साउथ अफ्रीका से, वो दिन को प्रवासी दिवस मनाया जाता है. ओके, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन January 9th and commemorate of
रिटर्न ऑफ गांधी जी, 9 जनवरी को जब गांधी जी अफ्रीका से पढ़ के रिटर्न आए थे इंडिया में, तो उसको प्रवासी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ओके, द फेस्टिवल इज कंबाइंड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान, an award to honor exceptional contribution of NRI professional picture to award ceremony for 2015 can be found on Facebook। सो देखो एक चीज़ आप सोच रहे हैं कि ये प्रवासी दिवस वगैरह बनाने की क्यों ज़रूरत है, वो इंडिया में रहते नहीं है, बाहर रहते हैं, तो भी हम इतना केयर कर रहे हैं। उसके पीछे स्टूडेंट एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्यों है? क्योंकि प्रवासी दिवस बनाने से, उनको NRI को इतना सपोर्ट करने से इनडायरेक्टली इंडिया का फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कोई दुबई में रह रहा है, कोई USA में रह रहा है, वो लोग वहाँ कमाते हैं, बट वो लोग अपना जो पेमेंट है, अब समझो कि उनके घर वाले यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, तो वो पेमेंट वगैरह है ना यहाँ पे पहुँचाते इंडिया में। सो अभी समझो कि वो वहाँ डॉलर कमा रहे, अभी एक डॉलर 72 रुपीज़ है, तो वो वहाँ यहाँ भेजते हैं ना, तो जितना डॉलर हमको मिलेगा उतना हमारा इंडियन रुपीस का वैल्यू घटेगा, नहीं सॉरी वैल्यू बढ़ेगा। अगर डॉलर हम ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। ओके, तो इसलिए उनको ये प्रोत्साहन किया जाता है। आखिर बाहर से पैसा आ रहा है भाई इंडिया में। ओके, बिसाइड द इफोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फिल्म डायरेक्टेड एट द डायस्पोरा इन 1990 आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस मूवी सच एस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओके, परदेश, कुछ कुछ होता है, हैपेंस, कभी खुशी कभी गम। ओके, तो ये जो सारी फिल्में थी ना, देखो 1990 में लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन माने क्या होता है कि गवर्नमेंट ने है ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रखे थे। इंडिया वॉज ए क्लोज इकोनॉमी। हम 1947 में आज़ाद हुए, ठीक है, उसके पहले हम ब्रिटिश हम पे हुकूमत करते थे, मतलब एक फॉरेनर कंट्री हमारे इंडिया को चला रही थी। ओके, सो 1947 के बाद हमने डिसाइड किया कि अभी हम कोई कंट्री से संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि डर था कि बाबा अभी कोई दूसरी कंट्री से हम छुटकारा पाए, अगर हम तुरंत ही कोई कंट्री से फिर संबंध बढ़ाएंगे वो हम पे हुकूमत ना कर ले। इसलिए 1990 तक तो हम क्लोज इकोनॉमी थे, ना बाहर के किसी को हमारा प्रोडक्ट बेचते थे, ना उनका प्रोडक्ट यहाँ लाते थे। तो 1990 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आया, तो फिल्मों में भी ये इम्पैक्ट हुआ, फिल्में भी उस प्रकार से बनने लगी। तो देखो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी, उसमें बहुत सारे सीन फॉरेन के बताए। ओके, तो फॉरेन में जाके भी शाहरुख खान अपने रीति रिवाज को भूलता नहीं है। तो जब ये डायस्पोरा मतलब बाहर के लोगों ने जब ये फिल्में देखी, तो उनको ऐसा लगा अरे यार, शाहरुख खान ने मूवी में बताया है कि वो भी फॉरेन में आया है और वो इंडियन कल्चर को नहीं भूला। तो वो इंडियन पीपल को रियलाइज़ होता है कि हम भी विदेश में आ गए, पर हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, दिस मूवी स्टार्टेड ए ग्रुप इंडियन एवेन्यू, दस क्रिएट इंडिया हैज़ ए प्लेस ऑफ लॉगिंग फोकसिंग ऑन ए फैमिली ट्रेडिशनल एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो देखो ज़्यादा फिल्में कैसे बनने लगी, परिवार पे ध्यान दो, फैमिलीज पे ध्यान दो। ओके, तो ये क्यों बन रही थी? क्योंकि इंडियन डायस्पोरा से हमको आ रहा है, पैसे आ रहे, वो लोग पेमेंट वगैरह, उनकी फैमिली यहाँ पे, तो पिक्चर ऐसे बनने लगी कि आप भले बाहर रह रहे हो पर आपकी फैमिली 7 समुंदर दूर है, तो भी उनका ध्यान रखो। ये ऐसी फिल्में बनने लगी। ओके, द स्टोरीज अभी देखो दिल्ली 6 जो मूवी है उसके बारे में ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, अभिषेक बच्चन अमेरिका से आता है पुरानी दिल्ली में, वो सब आप वो पिक्चर देख लेना। ओके, सो स्टूडेंट अभी मॉडर्न बॉलीवुड मूवीज गिव्स द डायस्पोरा ऑडियंस ए पॉसिबिलिटी टू फॉर्म देयर आइडेंटिटी विद द हेल्प ऑफ आइडियलनेस एंड इंडियननेस। देखो मॉडर्न फिल्में भी जो बन रही है उसमें भी डायस्पोरा का ख्याल रखा जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, नमस्ते लंदन जो फिल्म बनी थी, तो उसमें देखिए जो कटरीना कैफ के जो पिताजी थे ऋषि कपूर, देखो वो बार बार बोलते हैं कि भाई हम तो गंगा से, कौन सी नदी थी वो लंदन में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी, तो हम अगर बोले
यहाँ आ गए तो भी हम देसी है, बोले लंदन में रह के भी हम हमारे रीति रिवाज नहीं भूले। आप वो फिल्म देख लो, ऋषि कपूर ने बोला है, बोले हम हमारे देसी रीति रिवाज नहीं भूले। तो ये याद दिलाया जाता है डायस्पोरा को, इंडियन डायस्पोरा को, कि आपका कल्चरल आपको संभाल के रखना है, एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है बॉलीवुड। ओके, सो स्टूडेंट, so this type of characters and movies are presented for diaspora, तो उनका जो सेंस ऑफ ये है फीलिंग अमॉन्ग आवर नेशनलिज्म वो बढ़े। ओके ओके स्टूडेंट, so student, it is enough for today, as I have discussed all the why diaspora and important of Bollywood in the eye of diaspora. So hope you all are enjoying the lecture.